Good morning, students. Here is a lesson number 5, poetry lesson. Where do all the teachers go? For a little child, a teacher is very special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. मतलब एक छोटे बच्चे के लिए उसकी टीचर जो है वो काफ़ी स्पेशल होती है और मतलब एक बच्चे के लिए सोचना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उसके जो टीचर है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children and were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched in the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. So, this poetry by Peter Dixon. Now, I repeat this poem. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses as the same as you and me? Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. So here is a poem is finished. Now I am going to take to explain this poem by a summary and we are going to learn the glossary. What is the glossary of this lesson? Now these are the glossary of this lesson. Pinch squeezed between thumb and finger. Chocolate flakes, chocolate chips, hymn, a song of praise or thanksgiving to God or deity. Scribble, make meaningless marks as with a pen or pencil. Now here is a summary of this poem. The poem depicts the curiosity of a child in knowing where his teacher goes. एक चाइल्ड की क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहता है कि उसकी टीचर जो है वो कहाँ गए. अ टीचर इज़ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर एवरी चाइल्ड. ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द टीचर. व्हेन द स्कूल आवर्स आर ओवर ही वंडर्स इफ़ टीचर लाइक अदर पीपल लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेस. मतलब वो काफ़ी स्पेशल पर्सन होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो ऑर्डिनरी है. तो स्कूल आवर्स के बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनका घर भी है या नहीं, वो अपने क्लोथ्स धोते हैं या नहीं, वेयर पजामास पजामा पहनते हैं या नहीं, वॉच टीवी और पिक देयर नोजेस, सो वो टीवी देखते हैं या नहीं. ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ टीचर्स लिव्स विथ फैमिलीज़. अगर वो जानना भी चाहता है कि वो टीचर जो है फैमिली के साथ रहते हैं. इफ़ दे वर एवर चिल्ड्रन, इफ़ दे डिड समथिंग विच मेड देम बैड. क्या उनके बच्चे भी हैं जो उन्हें बैड फील करवाते हैं. ही इज़ इंटरेस्टेड टू नो इफ़ द टीचर्स एवर मेड स्पेलिंग मिस्टेक्स. क्या कभी टीचर से भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है. एंड इफ़ दे वर आस्क्ड टू स्टैंड इन द कॉर्नर, या उन्हें पनिशमेंट भी मिली है कभी उन्होंने मस्ती की है तो. ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ हिज टीचर एवर लॉस्ट देयर बुक्स. क्या टीचर ने कभी बुक भी घुमाई है. स्क्रिबल्ड ऑन द डेस्कटॉप्स और वॉर डर्टी जींस. क्या जो बुक्स जो है वो डेस्कटॉप पर मतलब डेस्क पर भूल कर वो अपनी बुक्स भूल जाते हैं. क्या उन्होंने कभी डर्टी जींस पहनी है. ही सेज ही विल फॉलो वन ऑफ द टीचर होम टू फाइंड आउट ऑल आंसर्स. उसने ऐसा कहा कि वो टीचर्स को फॉलो करेगा जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर उसे मिल जाएगा और फिर वो उस पोएम में इन सारी चीज़ों को पुट करेगा ताकि टीचर्स भी उन्हें रीड कर सके. नाउ वर्किंग विद द पोएम. वाई डज़ द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock. मतलब पोएट क्यों जानना चाहता है कि टीचर्स 4 o'clock के बाद कहाँ जाती है. द पोएट फील्स द
Teachers have a very different life from everyone else. Hence he is curious to know where the teachers go after school hours. पोएट को ऐसा फील होता है कि टीचर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, टीचर्स की जो लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरे लोगों से, सो इसलिए वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि टीचर्स जो है स्कूल आवर्स के बाद कहाँ जाते हैं. वॉट वर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट. मतलब ऐसी कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं जिसके बारे में पोएट ने कही है पोएम में. द पोएट सेज द नॉर्मल पीपल लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेस. नॉर्मल पीपल जो है वो ऑर्डिनरी हाउसेस में रहते हैं उनकी फैमिली के साथ. दे वेयर पजामाज, वो पजामा पहनते हैं. टीवी देखते हैं शाम को. दे वॉश देयर ओन क्लोथ्स, वो अपने खुद के कपड़े धोते हैं. ऑफन पिक देयर नोजेस, वो अपने नोज़ को भी पिंच करते हैं. नाउ व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वो क्या इमेजिन करता है. वेयर टीचर्स लिव, टीचर कहाँ रहते हैं. द पोएट क्यूरियस टू नो इफ़ द टीचर्स लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेज एज एवरीवन एल्स. मतलब पोएट क्यूरियस इस बारे में जानना चाहता है कि टीचर्स भी है वो ऑर्डिनरी हाउसेस में रहते हैं. वॉट दे डू एट होम, वो घर पर क्या करते थे. पोएट वॉन्डर्स इफ़ द टीचर्स वेयर पजामाज एंड वॉच टीवी, वॉश देयर ओन क्लोथ्स और पिक देयर नोजेज लाइक अदर पीपल व्हेन दे आर एट होम. जब वो घर पर रहते हैं तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं. द पीपल विथ whom they live, the poet wants to know if teacher live with their families and whether they do have moms and dads. मतलब पोएट ये जानना चाहता है कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, टीचर्स जो है अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो क्या उनके मम्मी डैडी हैं. देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन एट स्कूल, और उनकी एक्टिविटी जब वो चिल्ड्रन थे स्कूल में. द पोएट वांट्स टू नो इफ द टीचर्स एवर लॉस्ट देयर बुक्स, क्या कभी टीचर्स ने भी अपनी बुक घुमाई है, क्या अभी कभी डेस्क पर स्क्रिबल किया है, क्या कभी स्पेलिंग मिस्टेक की है उन्होंने. मेड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड वर दे एवर पनिश्ड फॉर बीइंग मिस्चीवियस, क्या कभी उन्हें मस्ती करने पे पनिशमेंट मिली है. व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन द स्कूल, जब वो स्कूल में छोटे बच्चे थे. व्हाई डज द पोएट वंडर इफ़ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू. पोएट ऐसा क्यों सोचता है कि टीचर्स भी वही चीज़ कर सकती है जैसे कि दूसरे लोग करते हैं. टू द पोएट अ टीचर इज़ अ परफेक्ट, पोएट के लिए टीचर बिल्कुल परफेक्ट है. ही फील्स दैट लाइफ ऑफ अ टीचर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑफ एवरीवन एल्स. जो टीचर की लाइफ है वो दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है. हैंस ही वंडर्स इफ़ द टीचर डज थिंग्स दैट द अदर पीपल डू, और इसलिए वो सोचता है कि जो दूसरे लोग करते हैं वो टीचर्स भी कर सकते हैं. हाउ डज़ द पोएट प्लान टू फाइंड आउट वॉट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट. पोएट ने क्या प्लान किया है कि अगर उसे वो पता चल जाएगा उसे तो वो क्या करेगा. द पोएट प्लान्स टू फॉलो वन टीचर होम, मतलब पोएट ने प्लान किया है कि वो एक टीचर को फॉलो करेगा उनके घर तक. फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, उनके लाइफ के बारे में, आफ्टर स्कूल आवर्स के बारे में वो क्या करते हैं. ही सीज दैट वंस ही नोज व्हाट दे डू ही वुड राइट अ पोएम अबाउट देम. अगर एक बार उसे पता चल गया कि वो क्या करते हैं तो वो उसके बारे में पोएम में बताएगा. नाउ व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम mean. I punished in the corner, live their greens. Punished in the corner, asked. To stand in the corner of the classroom as punishment, मतलब क्लासरूम में खड़े रहकर पनिशमेंट मिलना. Leave their greens, मतलब children often leave लीफ़ी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब जो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रीन और लीफ़ी वेजिटेबल्स जो है अपनी प्लेट में छोड़ जाते हैं और वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं होती हैं. सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 5, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. हियर इज़ अ पोएट्री एंड योर समरी, ग्लॉसरी, textual exercise, all we have done today. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.